बच्चा जर्मनी ही क्यों चूज़ करे और ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ ना करे या यूके क्यों चूज़ ना करे, मतलब स्पेसिफिकली जर्मनी ही। If I'll talk about particularly about the studies, tuition fee is highly economical. You can have the both options. You can choose the public universities, or you can go towards the private universities. It depends. जो भी आते हैं ना ऑफिस में बड़े परेशान होते हैं, सर वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, वीज़ा आएगा नहीं आएगा। पता चला हमने इतनी मेहनत करी, लैंग्वेज A1 A2 भी IGL से करा और बहुत पढ़ा, और फिर पता चला इन दी एंड वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इट डिपेंड्स आपकी फ़ाइल मेकिंग किस तरह से हुई है। वंस यू हैव द क्लियरेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, उसके बाद इट टोटल डिपेंड्स ऑन योर वीज़ा एप्लीकेशन, दैट हाउ यू पुट द एप्लीकेशन आप। हेलो, दिस इज़ मी सैयद जैन मेहदी फ्रॉम IGL, और आज मैं साथ हूँ राबिया दार के फ्रॉम IU। Thank you so much, Zan, for having me. I would like to introduce myself. That my name is Rabia, and I'm representing IU in Pakistan. And it's a wonderful experience to represent IU in Pakistan because we have a very big market for the German student in Pakistan. So there are a lot of students which are interested for particularly Germany. So we'll definitely talk about IU and rest of the things, like how we can, how a student can adjust in Germany, and how he can, explore the opportunities while study period, like the work opportunities. And Germany has the rich culture. It's just in the center of the Europe. So it's a wonderful period to be there, while studying, and while you can explore the rest of the world. इंट्रोडक्शन आप लोगों ने सुना राबिया का, और ये हम जो सारी बातें करने वाले हैं वो बेसिकली जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम में ना इस वक्त कि भाई स्टडी के लिए जर्मनी जाएं या नहीं जाएं, या फिर ऑस्ट्रेलिया जाएं या फिर यूके जाएं, तो उन्हीं को क्लियर करने के लिए हमारा ये मकसद है राबिया। तो होपफुली आप उनको सही से गाइड कर देंगी। अब जैसा कि पहला जो मेरा सवाल आपसे होगा कि बच्चा जर्मनी ही क्यों चूज़ करे और ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ ना करे या यूके क्यों चूज़ ना करे, मतलब स्पेसिफिकली जर्मनी ही क्यों, और क्या बेनिफिट्स जर्मनी उनको देता है अगर बच्चा जर्मनी में पढ़ना जाना चाहता है। At this point of time, Zan, if I'll talk about Germany as having approximately 458,000 international students, and German accredited degree is globally recognized. Germany has top-tier education. It has a rich culture, and it has the central location. It's in the heart of the Europe. And if I'll talk about particularly about the studies, tuition fee is highly economical. You can have the both options. You can choose the public universities, or you can go towards the private universities. It depends that which profile you are having. So as per your grading, academic, everything, you can choose the option. So by the end of the day, it does matter that affordability, it does matter. So if you can afford, in the private universities, which are also requiring very minimal fee. If I'll talk about the IU, at the bachelor's level, we have very small minimal fee, that is 4,000 something. And if you want to go towards the private public universities that are fully funded, so there are many reasons that you should be, and you should choose the Germany as your study destination. If I'll talk about the living standard and everything, that is also very secure. लड़के तो कहीं पे भी पढ़ने जा सकते हैं. When there is a point come towards the girl, so it should be highly secure. Place should be highly secure. Country should be highly secure. So Germany is the safest place to be to live. So I believe these are the options that anyone would like to be there. बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, मेरा भी इसमें यही है कि जो फ़ीस का जो इशू होता है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, अब मैं एज एन एजुकेशन कंसल्टेंट तो सबको बराबर रखता हूँ। मतलब ऑस्ट्रेलिया भी बच्चे आते हैं कि नहीं यार हमें ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, या फिर मुझे जो है वो यूके ही जाना है, तो मैं उनको जब गाइडेंस देता हूँ तो मैं उनको ये बात बता देता हूँ कि देखो ऑस्ट्रेलिया में जो है ना फ़ीसेस ज़्यादा है। मतलब अगर आप सबसे चीपेस्ट भी लें तो 12,000 13,000 AUD एक सेमेस्टर की फीस exactly. है। तो अगर आप इसको ईयरली देखें तो 24,000, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। exactly. और फिर आपने सिर्फ ये फीस ही नहीं निकालनी, आपने जो है वो अपना जो अकोमोडेशन एक्सपेंस हो गया, या अपना जो फूड एक्सपेंस हो गया, बहुत सारे एक्सपेंस होगा जो आपने वो भी कवर करने मैनेज करने हैं, जो कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत मुश्किल हो जाता है। और यूके में तो आपको पता है कि जैसे कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जर्मनी में ये फ़ायदा है कि आपने भाई फ़ीस तो बिल्कुल ही एक लो है,
बिल्कुल ही कम फीस है, लेकिन आपने सिर्फ अपना जो है वो अकोमोडेशन के चार्जेस निकालने हैं, आपकी ट्रैवलिंग आपकी फ्री है, आपको पता है कि वो कार्ड यूनिवर्सिटी आपको कार्ड देती है, उसमें आप पूरे स्टेट के अंदर जो है वो फ्री ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो और जो अर्निंग है, अर्निंग और ख़ास तौर पे बर्लिन में, जिसमें या आयू यूनिवर्सिटी, आयू तो खैर बिल्कुल मिड में बनी हुई है, मैं एक बार कैंपस Yes. गया भी हूँ इनके, तो बहुत अच्छा कैंपस बना हुआ है और बिल्कुल मिड सिटी में बना हुआ है, और वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बर्लिन में ज़्यादा हैं। तो 20 आवर्स आपको काम अलाउ होता है, उसमें आप इतना इनकम ले लेते हैं कि आप यूनिवर्सिटी की जो बिल्कुल ही मिनिमल फीस है, मतलब बहुत ही कम है, वो भी पे कर पाएँ और अपनी सारी अकोमोडेशन वगैरह भी निकाल पाएँ। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जनरली हम जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो बच्चे आते हैं कि यूके ऑस्ट्रेलिया में जो है हमें डायरेक्ट 3 ईयर का बैचलर्स करना है इंटरमीडिएट के बाद, ख़ास तौर पे क्योंकि ओ लेवल और ए लेवल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तो 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होती है, वो जर्मनी जाएँ, यूके ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाएँ तो वो 3 ईयर्स का बैचलर्स करते हैं। लेकिन अब जो बच्चा जर्मनी पढ़ने आता है, जाना चाहता है, और वो इंटरमीडिएट का होता है, फ़र्ज़ करें कि उसने इंटर में उसकी 65 परसेंटेज है, अब जब वो हमसे बोलता है कि हमें जो है वो 3 ईयर्स का बैचलर्स करना है, तो डेफिनेटली ये जर्मनी में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जर्मनी 4 ईयर्स का ही करवाती है स्टूडेंट कोलीग, मतलब फाउंडेशन ईयर प्लस 3 ईयर्स का जो बैचलर्स डिग्री होती है। तो इस पे वो कंपेयर कर सकता है कि यार यूके में मैं जाऊँगा तो 3 ईयर्स पढ़ूंगा, और जर्मनी जा रहा हूँ तो फाउंडेशन प्लस 3 ईयर्स की बैचलर्स डिग्री लूँगा। और फिर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि फाउंडेशन ईयर मुश्किल है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि मैं उसको फेस करता हूँ कि नहीं सर फाउंडेशन ईयर तो मुझसे नहीं हो पाएगा, स्टूडेंट को लिए कितना टफ है, उसके अंदर ये मैथ बड़ी टफ है, फिजिक्स बड़ी टफ है। तो ये इसके बारे में आप क्या गाइड करेंगे बच्चों को? इट्स बेसिकली ग्लोबली, ये सिर्फ जर्मनी में, यूरोप में, यूके में इस तरह से नहीं है, ये ग्लोबली है। सब डेस्टिनेशंस के लिए यही है कि इफ़ यू हैव द इंटरमीडिएट 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद यू हैव टू टेक द पाथवे। ये डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके डिफरेंट टर्म्स हैं, कहीं पे इसको पाथवे बोला जाता है, कहीं पे इसको फाउंडेशन बोला जाता है, बट वी कॉल इट पाथवे प्रोग्राम। If you have done the intermediate 12th standard, then you will be eligible for the pathway courses, and right after 1 year with 2 semesters, you will directly route towards the bachelor's degree, which is with 180 ECTs. So it's basically the total tenure of your degree, bachelor's degree would be 4 years. ठीक है, so it's basically in general everywhere the tenure is same if you have done the 12th standard. But if you have done the A levels, AS level, IB diploma, university 1 year qualification, with that you would be directly eligible for the bachelor's degree with 180 ECTs duration. So it's route which they has designed, and ये सब के लिए एक जैसा है globally for all the destination. It's not particularly for the Germany or any other destination. It depends what you have started before. Whatever you have started before, उसके बाद it will be decided where you can be fit in. तो बिल्कुल अच्छा, बच्चे कहते हैं वो आउफनामे प्रूफिंग बड़ा मुश्किल होता है, फिर उसके बाद इनका एक जर्मनी में फेस्ट चलूंग प्रूफिंग होता है जो स्टूडेंट को लीग के एंड में होता है, वो कहते हैं भाई फेस्ट चलूंग प्रूफिंग पास करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने भी जो है ये सब दिया हुआ है, मैं आउफनामे से, फेस्ट चलूंग से, इनके जो फाइनल एग्जाम होता है उससे गुजरा हूँ, और मैंने पहले अटैम्प्ट में किया है, और मैं कोई पढ़ने में इतना मतलब ख़ास नहीं था या नहीं हूँ, पढ़ने में मैं एवरेज हूँ, लेकिन मैंने फिर भी इजीली कर लिया। तो जब मैं कर सकता हूँ तो सारे स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि कर सकते हैं इजीली। तो फाउंडेशन करना मुझे लगता है कि बेनिफिशियल है फिर आगे पढ़ाई के लिए भी। ऑब्वियसली, बिकॉज देखो ना, आपका अगर आप इंटरनेशनली उस लेवल को जो मीट नहीं कर रहे, आप 12th स्टैंडर्ड के साथ हो, तो आपका 13 ईयर एजुकेशन होना चाहिए जस्ट टू बी एलिजिबल फॉर द बैचलर्स डिग्री इफ़ यू वांट टू स्टडी इंटरनेशनली। तो अगर आप उसको मीट नहीं करें, यू हैव टू टेक द रूट, और वो रूट बेसिकली उसमें आपकी जो है वो फाउंडेशन मीन्स, ये फाउंडेशन के नाम से इट शोज़ कि इसमें आपकी फाउंडेशन को जो है उस पर काम किया जाता है, आपको बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सो इट्स नॉट दैट टफ, ये सिर्फ रूमर्स हैं, आई बिलीव ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको यू जस्ट हैव टू, इट जस्ट द सेम ईयर आई बिलीव, बट विद द डिफरेंट चैलेंजेस आई वुड से, एंड क्यूमुलेटिवली आपका जो टोटल टेन्योर होगा दैट विल बी 4 years, एंड इट्स द पार्ट ऑफ योर डिग्री, योर बैचलर्स डिग्री। इफ़ you will not do that, you will not route to bachelor's degree, so it's a route which you have to take. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बच्चे सारे जो भी आते हैं ना ऑफिस में बड़े परेशान होते हैं, सर वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, वीज़ा आएगा नहीं आएगा। पता चला हमने इतनी मेहनत करी, लैंग्वेज A1 A2 भी IGL से करा और बहुत पढ़ा, और फिर पता चला इन दी एंड वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि वीज़े के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका वीज़ा रेशो जो है वो कम है। तो आप मुझे ये बताएं कि आयु के अंदर जो है ये वीज़ा रेशो कैसा है?
ओके अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देख रहे हैं ना कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फाउंडेशन और पाथवे और उसके लिए आपका वीज़ा नहीं होगा, इट्स विद इन द यूनिवर्सिटी। इफ़ आई टॉक अबाउट द IU, वी हैव द फाउंडेशन और पाथवे, वो हम विद इन द यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहे हैं। आप पहले वो पढ़ोगे, देन यू विल राउट टुवर्ड्स द बैचलर्स डिग्री। सो इट्स नॉट समथिंग कि उसमें आपका वीज़ा रेशो इट विल बी वीक। इफ़ यू विल गो टुवर्ड्स द बैचलर्स डिग्री तो यू हैव द गुड चांसेस। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इट डिपेंड्स आपकी फाइल मेकिंग किस तरह से हुई है। वंस यू हैव द क्लियरेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, उसके बाद इट टोटल डिपेंड्स ऑन योर वीज़ा एप्लीकेशन, दैट हाउ यू पुट द एप्लीकेशन, हाउ यू गोइंग टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वीज़ा ऑफिसर। सो इट ऑल डिपेंड्स आप अपने केस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। तो आई थिंक हमें इन चीज़ों पे फोकस करने की बजाय कि वी आर टेकिंग द पाथवे, वी आर टेकिंग द प्री मास्टर्स व्हाटसोएवर, हम ये रूट ले रहे हैं, माइट बी फॉर दैट रीज़न वी आर नॉट गेटिंग द वीज़ा। नो, दिस इज़ नॉट द रीज़न that how you are carrying your case, how you are representing your application in front of the visa officer, because Germany is the destination जहाँ पे इंटरव्यू होता है। सो यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर। आपके पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं, इट्स नॉट द थिंग कि आपने सारी चीज़ें काउंसलर पे आपने डाल दी हैं एंड ही इज़ डूइंग, वो तो अपना काम करेगा, दैट्स हिज वर्क टू डू। बट द पॉइंट इज़ कि स्टूडेंट को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम engage होने की ज़रूरत होती है with his application, and that's very important. It's not something that you just put all the things on the other person, ठीक है, और वो आपका काम कर रहे हैं, उनका काम है, वो तो करेंगे ही। You need to know what is in your case, आपके केस में है क्या, because by the end of the day you are going to represent it ना। आपको पता ही नहीं आपकी SOP पे क्या लिखा है, आपकी फाइल में क्या है, how your finances are, how you did the block account, and what were the stages of application. These are very small things, if we'll look into this. But unfortunately हमारा student यहाँ पे क्या करता है, they are like okay, if they hired some agency counselor, they just put all the things on them, भाई वो करेंगे, उनको सब पता कुछ, भी नहीं होता हाँ, कि SOP पे लिखा हुआ क्या है, उन्होंने अपनी SOP पढ़ी भी नहीं होती है। दे आर नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। और अगर इस तरह के भी केसेस हमारे सामने आते हैं कि आपको वीज़ा ऑफिसर कहता है SOP इज़ सो गुड, चलो आप लिख के दिखाओ। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता उसकी SOP पे क्या लिखा है। सो इट्स अ बिग कॉन्फ्लिक्ट, यू डोंट नो कि आपकी SOP पे क्या लिखा है, व्हाट यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन होती है और उसको पता चल जाता है ये इसने अपनी केस प्रिपेयर नहीं किया, ही इज़ नॉट बिहाइंड दिस, ठीक है। सो इन बेसिस पे भी आपके वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि आपको यू हैव टू कनेक्ट विद योर एप्लीकेशन। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। ये मेरा एक स्टूडेंट था, नाम नहीं लूँगा, वो नाराज़ हो जाएगा। तो उससे पूछा, अब जैसे आप चेन कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, आपने जो बैचलर्स में किया हुआ है, फिर जब आपने मास्टर्स करना है तो आप उसी का चेन कोर्स उठा रहे हैं। जैसे कि आपने जो बैचलर्स में कुछ कोर्सेज पढ़े वो आपने मास्टर्स में भी आगे पढ़ने हैं। अब उससे इंटरव्यू में पूछा कि अच्छा भाई, जो आप कोर्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहले सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। तो ये कितना कॉमन क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं कहीं मास्टर्स करने जा रहा हूँ तो मुझे पहले सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक पता होगा कि मैं ये कोर्सेज पढ़ने वाला हूँ। तो उसको मास्टर्स के कोर्सेज तक अपने नहीं पता थे, और अगर उसको मास्टर्स के कोर्सेज नहीं पता था तो वहीं पे दिख रहा है कि वो कितना सीरियस है पढ़ाई को लेकर। तो वो इस वजह से वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया उसका। फिर वो आके ये बोलता है कि यार सर वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आपने तो कोई गलती नहीं करी। हाँ, फिर वो एजेंसीज का और कंपनीज का काउंसलर का उस पर वो दे जस्ट पुट दिस थिंग ऑन देम कि भाई आपकी वजह से हमारा अच्छा, उसको मैंने बताया कि भाई तुम्हें चेन कोर्स पता होने चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो सॉफ्टवेयर की थोड़ी नॉलेज तो हो। एग्जैक्टली, थोड़ी नॉलेज तो, अगर वो सॉफ्टवेयर का बहुत बेसिक सवाल कर ले तो वो तो आपको पता हो ना। बिल्कुल ऐसे ही। सही। और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि जो आपका, जैसा बहुत सारे बच्चे करते हैं कि पहले जो बैचलर्स में वो कोई और कोर्स है और मास्टर्स में बिल्कुल इररेलेवेंट है, मतलब वो कोर्स कहीं भी बैचलर्स से रेलिवेंट है ही नहीं, तो फिर तो वीज़ा रिजेक्ट होता ही होता है। बहुत रेयर में ऐसा होता है कि आप, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी, पहले तो यूनिवर्सिटी उनको रिजेक्ट कर देती है कि भाई आप जो है वो आपके कोर्स थोड़े से डेफर कर रहे हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन दे भी देती है, क्योंकि IU तो नहीं देती, IU तो बोलती है भाई कोर्स रेलिवेंट ही हो, मतलब थोड़ा सा रेलिवेंट कोर्स हो, जो आपने बैचलर में पढ़ा है वो मास्टर में पढ़ा हो, अगर कुछ मतलब कुछ सेंस बनता हो। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आप मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं तो चलो समझ आ रहा है कि मैंने इलेक्ट्रिकल करी है और मैं किसी कंपनी में आप मार्केटिंग को लेके चलूँगा, या फिर कोई प्रोजेक्ट संभालने वाले हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो वो समझ आता है, मतलब कुछ ना कुछ रेलिवेंट हो। तो बच्चे बिल्कुल इररेलेवेंट कोर्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। देखें, हमारे ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बहुत सारी चीज़ों पे। अब बैचलर्स लेवल पे क्या होता है, अगर आपने प्रीवियसली इंटरमीडिएट किस में भी किया है, A levels उसी में भी किया, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव द ऑप्शन टू चेंज योर फील्ड।
बैचलर्स लेवल पे इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जो आपसे बैकग्राउंड मांगती हैं, कोई आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ा हो, कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट वो मांगती हैं, बट at this point of time you have the option to change your profession if you want to, ठीक है। एक चीज़ की होगी, इस पॉइंट पे आप चेंज कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड इफ़ आई टॉक अबाउट द मास्टर्स डिग्रीज, उसमें क्या होता है, उसमें मास्टर्स पे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको मास्टर्स के लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है जो कि आईयू भी रिक्वायर करती है। ऑन द अदर हैंड आपकी जो प्रीवियस डिग्री है इट शुड बी प्रॉपरली relevant with your progression degree, ठीक है। so relevancy it depends course to course, and on the other hand कुछ ऐसे courses भी होते हैं which are non specific, we are not requiring any background, ठीक है, but we are requiring experience, so it depends course to course। देखो course हमने जो भी choose किया है, if university is allowing us that you can take this course, later on आपने उसको justify करना है with your आपने जिस भी basis पे वो course opt किया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रीवियस डिग्री, ठीक है, वट एवर द रीज़न इज़, आपने उसको जस्टिफाई करना होता है इन फ्रंट ऑफ द वीज़ा ऑफिसर इफ़ ही आस्क अबाउट इट। बट दिस इज़ नॉट द पर्टिकुलर रीज़न आई वुड से कि आपका जो वीज़ा है वो इस रीज़न की वजह से रिजेक्ट होता है दैट यू हैवंट स्टडी दिस बिफोर। तो ये इट्स नॉट द प्रोमिनेंट वन, माइट भी इसमें कोई और रीज़न्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको LOA दे दिया है, यू हैव द क्लियरेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स टिल दैट टाइम देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आपने कोई उस केस को प्रॉपरली कैरी नहीं कर सके, यू डोंट हैव द प्रॉपर टूल्स टू जस्टिफाई योर एप्लीकेशन, सो इन दैट केस देयर कैन बी एनी प्रॉब्लम, बट अदरवाइज दिस इज़ नॉट द स्पेसिफिक और पर्टिकुलर रीज़न। देखो अगर यूनिवर्सिटी को आपको वो कोर्स बैकग्राउंड रिक्वायर कर रही है, ठीक है, तो वो आपको कभी भी ऑफ़र लेटर नहीं देगी, ऑफर लेटर नहीं देगी, आपको LOA नहीं मिलेगा, आपको कंफर्मेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। सो हाउ वुड यू विल बी एबल टू कंटिन्यू दिस थिंग, आप नहीं कर सकोगे ना। सो दिस इज़ नॉट द पर्टिकुलर रीज़न दैट फॉर दैट रीज़न आपके वीज़ाज रिजेक्ट होते हैं, नो दिस इज़ नॉट द रीज़न आई वुड से। सो बेसिकली वी नीड टू नो कि भाई अगर ये कोर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से वी आर गेटिंग द क्लियरेंस, दैट मीन्स उसके बाद हमने इसको जस्टिफाई करना है। सो दे मस्ट बी प्रॉपर रीजन्स to justify the application, so this is how it is। सही है। अच्छा, इसमें एक बात है, इंटरव्यू वैसे अगर मैं बात करूँ तो बहुत इजी होता है और वीज़ा रेशो भी जर्मनी का और कंट्रीज़ के हिसाब से वैसे ही बहुत अच्छा है। तो जो नॉर्मल एप्लीकेशन है, नॉर्मल बच्चा पढ़ने वाला है, अच्छा है, थोड़ा भी अगर वो थोड़ा सा सेंस रखता है तो मुझे लगता है उसका वीज़ा लग जाता है जर्मनी में, वो रिजेक्ट करते नहीं है फजूल में, तो अच्छा रेशो है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि आईयू लोकेटेड है बर्लिन के अंदर, मिड सिटी में। मैंने कैंपस विजिट भी करा है, बहुत बहुत बड़ा कैंपस है और बहुत अच्छा कैंपस है। जनरली यूनिवर्सिटीज़ का इतना बड़ा कैंपस नहीं होता, जैसे कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत छोटी बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो बनाया हुआ उन्होंने। तो आईयू का काफ़ी बड़ा कैंपस है। अच्छा, अब बर्लिन के अंदर रहना कितना बेनिफिशियल हो सकता है बच्चे के लिए बनिस्बत इसके कि वो किसी वो कोल में रह रहा है, बोchum में रह रहा है, कोबुर्ग में रह रहा है, डिफरेंट किसी सिटी में रह रहा है। तो बर्लिन में क्या फ़ायदे हैं जो बर्लिन में मिलेंगे लेकिन किसी और शहर में नहीं मिलेंगे? Acha, I would like to share a bit about IU. We are the pure German university with English taught courses, and IU degree is globally recognized. We have classes 3 to 4 days a week, and rest of the days there will be a portal which will be given to you, and you can study online wherever you are. So there are multiple things which IU offering to students initially, and उसके बाद बर्लिन में होने का क्या फ़ायदा? Berlin is just in the center, it's in the heart of the Germany, और location बहुत अच्छी है, it's rich in culture, and most importantly पाकिस्तानी student की जो priority है, they want to be in Berlin, so we are already there, so I believe rest of the things metropolitan cities definitely attracts to everyone। मुझसे एक बच्चे ने बोला कि सर अगर मैं बर्लिन से शिफ्ट होना चाहूँ ना तो फिर मैं क्या करूँगा? मैंने कहा भाई बर्लिन ऐसी जगह है कि जो एक बंदा चले गया ना एक बार तो वो कुछ भी हो जाए वो शिफ्ट नहीं करता। तो तुम अभी कह रहे हो कि मैं शिफ्ट करना चाहूँ लेकिन तुम करोगे नहीं, क्योंकि बर्लिन बहुत मतलब मेरे हिसाब से बहुत, एक तो सारे इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलते हैं, फिर थोड़ा सा इन्जॉयमेंट वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत बेनिफिट्स हैं बर्लिन में रहने के, क्योंकि नॉर्मल दूसरे शहरों में नहीं मिलते। क्योंकि कोई बंदा एक बार बर्लिन में रह लिया तो वो फिर मूव नहीं करता वहाँ से मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद डार्मस्टाड में था
मैंने अपनी जो डिग्री करी है वो TU डार्मस्टाड से करी। तो डार्मस्टाड एक मैं कहूँगा बिल्कुल ही बोरिंग शहर था। तो यही वजह है कि हम वापस पढ़ के जर्मनी से वापस भी आ गए, क्योंकि हम रह रहे थे डार्मस्टाड में। फिर अभी जो मैं लास्ट ईयर जर्मनी गया तो मैंने देखा कि यार अगर मैं बर्लिन में रह रहा होता ना तो मे बी मैं बैचलर्स करके वापस ना आता। और ये वाकई मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अगर मैं बर्लिन में होता या मैंने डिग्री जो है वो बर्लिन में करी होती 4 ईयर्स की, तो मैं कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आता। रीज़न यही था कि मैं डार्मस्टाड में रह रहा था, और डार्मस्टाड जो अभी है जर्मनी, वो जानते हैं कि डार्मस्टाड बहुत ही बहुत ही मतलब बोरिंग है। तो हमारे बेसिकली 2 कैंपसेस थे पहले, वी वर इन बैट हॉर्निफ इन बर्लिन, और अभी तो हम बैट हॉर्निफ को वी आर शिफ्टिंग समवेयर एल्स। तो जब भी स्टूडेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है ओवर द एक्सपोज एंड एनीवेयर, तो स्टूडेंट की हमेशा ये प्रेफरेंस होती है दैट दे वांट टू बी इन बर्लिन, बिकॉज बर्लिन का एक अट्रैक्शन है, चार्म है, रेस्ट ऑफ द सिटीज़ डज नॉट हैव दैट. So obviously everyone wants to be in the metropolitan city, whether it's a bit expensive, but it does has a lot of attractions. So for that reason they want to be in the Berlin. अच्छा, अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक कोर्सेज के हवाले से कि आयु जो है वो कौन कौन से कोर्सेज करेंटली ऑफर कर रहा है, बैचलर्स में, मास्टर्स में या पाथवे में, कौन कौन से कोर्सेज स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है वहाँ पे? वी हैव वंडरफुल कोर्स रेंज, जिसमें हमारे पास इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, IT है, कंप्यूटर साइंसेस है, वी हैव साइबर सिक्योरिटी, इफ आई टॉक अबाउट द मेडिकल कोर्सेज, वी हैव हेल्थ केयर मैनेजमेंट, वी हैव द ऑप्शन फॉर स्पोर्ट्स टू, and we have wonderful course range, and in total we have 18 on campus courses. अब जो भी पाथवे के लिए हम ऑफ़र कर रहे हैं, सेम कोर्सेज वी आर ऑफरिंग फॉर द बैचलर्स, and for the masters we are offering 6 to 7 courses, जिसमें majorly we are offering engineering, and इसके अलावा उसमें cyber security है, and rest of the other courses too. We have 2 MBAs with 60 and 90 ECTs, and MBA में we have total 11 majors. अच्छा, MBA का कोर्स इतना अट्रैक्टिव क्यों है? रीज़न बिहाइंड इट्स द नॉन स्पेसिफिक कोर्स, एनीवन कैन अप्लाई फॉर इट, और इसमें बट द वन थिंग इज़ वी आर रिक्वायरिंग 1 year वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, और हाउ द एक्सपीरियंस शुड बी, इट शुड बी द पोस्ट डिग्री वर्क एक्सपीरियंस, इट्स नॉट इन बिटवीन, और इंटर्नशिप वुड नॉट वर्क हियर. So it's a wonderful option for those students जो इनका background जो है वो they don't have the specific background, but they can choose their major, and this is how they can start their course. अच्छा, इसमें एक जो बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझसे सवाल करते हैं कि अभी जो मास्टर्स है इसमें वो 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है. अच्छा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम सर 2 years का मास्टर्स करें या 1 year का मास्टर्स करें ताकि फिर हम जल्दी जॉब पे लग जाएं. तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि मास्टर्स जो है वो 1 साल वाला करना चाहिए या फिर 2 years का करना चाहिए? अच्छा, दोनों मास्टर्स की ना बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट 1 year मास्टर्स और 2 year मास्टर्स, तो 1 year के मास्टर्स में आपको हमेशा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. इफ़ यू वांट टू टेक द 2 year मास्टर्स, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस, उसकी रिक्वायरमेंट कम होती हैं. सो इट डिपेंड्स बेसिकली. हमारे पास दोनों ऑप्शंस है, वी हैव 1 year 2 year, बट मोस्ट ऑफ द मास्टर्स डिग्रीज विद द सर्टन रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हम एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, वी आर आस्किंग फॉर द बैकग्राउंड टू. सो देयर आर बेसिकली इट ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट्स. If you are meeting the requirements, I would say why not go for the 1 year masters, save your money, save your time, and by the end of the day you are taking the same benefits. तो इसका मतलब है कि जो बच्चे, एक रूमर है यहाँ पे कि यार वो 1 साल का मास्टर्स करेंगे तो हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, वो फिर गलत है. No, it's not like that. It's not like that. Even if I'll talk about Germany में, if you have only one campus, one semester on campus, even then you are eligible for the PSW. So it's not like एक that. सेमेस्टर पढ़ने के बाद भी PSW Yes, मिल yes, जाता है. yes. और वही टाइम पीरियड होता है 18 months का. Yes, that is the standard for everyone. अच्छा, अब हम थोड़ी बात करते हैं कि आइल्स का. अब बच्चे डरते हैं कि सर आइल्स जो है वो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, और अगर आइल्स हमें करना है तो 6.5 बैंड जो कि बहुत ही मिनिमम है मेरे हिसाब से, तो मैं सोते में भी दो तो आ जाए 6.5. लेकिन बच्चों को थोड़ा डर लगता है आइल्स से कि यार ये आइल्स किस भला का नाम है, ये तो ये नहीं हो पाएगा जनरली, क्योंकि मैं ये फेस कर रहा हूँ. कोई बच्चा आएगा आइल्स है, अरे सर नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो आइल्स करना है और यहाँ नहीं जाना. तो आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, आयु के अंदर? अच्छा, रिक्वायरमेंट्स हमारी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स अभी रिसेंटली जो है वो चेंज हुई हैं, जिसमें वी आर टेकिंग 3 टेस्ट, जिसमें आइल्स है, इसके अलावा टॉफल एंड कैमरेट सर्टिफिकेट है विद अ सर्टन स्कोर्स. इफ़ आई टॉक अबाउट आइल्स, इट्स 6.5 ओवरऑल. वट एवर द स्कोर यू हैव इन ईच मॉड्यूल्स, दैट डजंट मैटर. अच्छा, यहाँ पे ना आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग. देखो, स्टूडेंट का जिस माइंड सेट के साथ आता है ना, वाई वी हैव द काउंसलर्स.
यू नो वाई वी आर सिटिंग हेयर, रीज़न बिहाइंड के हमने बच्चे को गाइड करना है, उस तरफ बच्चे को शिफ्ट करना है। वो जिस दिमाग के साथ आ रहा है अगर वो उसी दिमाग के साथ वापस जा रहा है तो आई फील लाइक यू आर लैकिंग समवेयर, दैट्स व्हाट आई फील। आपने उसको शिफ्ट करना है, आपने उसको बताना है व्हाट आर द बेनिफिट्स। बिकॉज देखो एट इनिशियल लेवल लेट्स सपोज बच्चे को डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, जस्ट यू नो मेक हिज माइंड आप आइल्स करो, बिकॉज इट्स नॉट ओनली गोइंग टू सपोर्ट यू इन द एडमिशन प्रोसेस बट एट द लेटर स्टेज आपको वीज़ा प्रोसेस में ये हेल्प करेगा। यू विल बी वेरी कंफर्टेबल वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है, और आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करेगा। एंड बाय द एंड ऑफ द डे आपने जो है वो इंटरव्यू के लिए जाना है, सो उसमें आपने इंग्लिश में ही बात करनी है। सो इट इज़ गोइंग टू यू नो सपोर्ट यू इन द लॉन्गर रन। तो आई बिलीव हमने ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर सम हाउ वी शुड इन्फ्यूज़ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। जितनी वी आर हेयर टू फॉर द अवेयरनेस टू जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है टू शेयर दैट टू अदर्स, ठीक है। तो आपने बच्चे को प्रिपेयर करना है कि अगर यूनिवर्सिटी रिक्वायर कर रही है, दिस इज़ नॉट द थिंग विच इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू एट वन स्टेज, ठीक है। आप इसको लॉन्गर रन में देखो तो ये आपको थॉरोली आपके पूरे केस में आपको सपोर्ट करेगी। तो एक चीज़ तो ये है, आई वुड यू नो सजेस्ट ऑल द काउंसलर्स, ठीक है, कि वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। अगर यूनिवर्सिटी देखें, यूनिवर्सिटी इज़ द इंस्टीट्यूट, एक उसकी रिक्वायरमेंट ना सम हाउ चेंज होती रहती हैं। सम टाइम दे हैव द हाई रिक्वायरमेंट, सम टाइम दे आर जस्ट यू नो चेकिंग द मार्केट, दे आर टेकिंग द फीडबैक दैट इट विल वर्क और नॉट। तो वो तो चीज़ें फ्लक्चुएशन में होती हैं, सम टाइम इट्स हायर सम टाइम इट्स नॉट। सो द पॉइंट इज़ कि आपने जो है वो स्टूडेंट को काउंसल इस तरह से करना है कि उसको ये चीज़ इतना बॉदर ना करे, बिकॉज दैट्स इम्पॉर्टेंट टू डू, ठीक है। ये सम हाउ मुझे ऐसा लगता है एक कंसल्टेंट को भी बड़ा सपोर्ट करती है। इफ़ यू हैव द गुड स्टूडेंट यू आर पुटिंग वेरी यू नो मिनिमल एफर्ट, बट इफ़ यू हैव द स्टूडेंट लाइक दैट जिसको अच्छे से बात नहीं करना आता, अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करना आता, आपको बहुत ज़्यादा, या ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट एप्लीकेशन, आई फील लाइक। तो ये इट्स द थिंग विच यू नीड टू मोटिवेट, यू नो। सम टाइम बच्चे नहीं, सेल्फ मोटिवेशन नहीं होती, दे आर नॉट द सेल्फ ड्रिवन, but in that case you have to put these things in you know those applications or students. तो आई थिंक ये मैं आई वुड लाइक टू शेयर दिस थिंग कि भाई ये सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए, दैट टू प्रिपेयर द स्टूडेंट। सिर्फ अच्छा, अगर आपकी बात कट कर रहा हूँ, हम प्रीवियसली जो है वो डुओलिंगो पे आयु भेजते थे स्टूडेंट्स, प्रीवियसली लास्ट ईयर भेजे हमने, उससे लास्ट ईयर भेजे, तो डुओलिंगो पे भी हम हो जाता था, या फिर कभी कभी वो MOI पे भी हो जाता था। लेकिन अभी कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं ये आइल्स की आयु की तरफ से। यस, वी वर टेकिंग डुओलिंगो MOI एंड रेस्ट ऑफ द टेस्ट जितने भी हैं, बट उनके भी जो स्कोर्स थे नॉट दैट हाई। और अभी प्रेजेंटली ये हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं जिसमें वी आर जस्ट टेकिंग 3 टेस्ट, आइल्स, कैमेट सर्टिफिकेट एंड टॉफल। एंड बिफोर दैट वी वर टेकिंग MOI Duolingo, तो हम भी ये टेस्ट ले रहे थे। सो इट डिपेंड्स। सो यूनिवर्सिटी एज आई ऑलरेडी सेड दैट कि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बट यू शुड कन्वे दिस थिंग टू मार्केट टू योर स्टूडेंट्स दैट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। ओनली इफ फॉर आइल्स अगर आप अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं तो माइट बी उस यूनिवर्सिटी में यू आर फेसिंग समथिंग एल्स, बिकॉज चैलेंजेस आर एवरीवेयर। सो यू नो आपको यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ऑल द चैलेंजेस, आई फील लाइक। अच्छा, एक और सवाल था जैसे कि जर्मन कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार जर्मनी जा रहे हैं और जर्मन नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ये पता है, मैंने खुद भी जर्मनी से पढ़ा है और मुझे लगता है कि जर्मन एक बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे रहने के लिए। अब आयु के अंदर कितनी नेसेसरी है कि जर्मन आए या ना आए, कितना फ़र्क पड़ेगा बच्चे को? ओके, अगर तो आप एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं फॉर द आयु, उसके लिए वी आर नॉट रिक्वायरिंग फॉर एनी जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, but we have this facility within the campus that we are offering German language classes. So because अगर यूनिवर्सिटी की premises की बात करें तो उसमें तो we are not requiring because mode of instruction would be in English. But on the other hand, if you want to connect with the local
एंड फॉर दैट डेफिनेटली आपको जर्मन लैंग्वेज तो 100% आपको सीखनी पड़ेगी. सो वी हैव दिस फैसिलिटी विद इन द कैंपस. अगर पाकिस्तान से आप सीख के जाना चाहते हैं दैट्स यू नो ये ज़्यादा अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन अगर वहाँ पे जाके भी आप सीखना चाहते हैं, वी डू हैव दिस फैसिलिटी विद इन द कैंपस, सो यू कैन लर्न द लैंग्वेज बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव टू, बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट विद द सोसाइटी, विद द लोकल्स, एंड फॉर दैट लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए. That's what I feel. और वैसे अगर पाकिस्तान में इतनी मतलब जर्मन सीख के जाए A1 या A2 या B1 इतनी कि वहाँ पे कहीं आप सुपरमार्केट जा रहे हैं या कहीं सिनेमा जा रहे हैं या कोई दोस्त बनाना है, तो इतनी जर्मन तो आपको एटलीस्ट आए कि वहाँ पे आप जो है वो मतलब इजीली कम्युनिकेट कर सके, थोड़ा बहुत तो कम्युनिकेट कर सके कि आपके फ्रेंड्स जैसे कि अब A1 लेवल तो हो. अब A1 लेवल में क्या सिखाते हैं वो यही तो सिखाते हैं कि भाई नंबर कैसे मांगना है किसी का, या किसी से मीटिंग कैसे सेट करनी है कि भाई हम कल 2 बजे मिलना है. तो इतनी जर्मन तो आए कि आप उसको बता सको कि आपने कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, क्या पर्पज़ है. तो मेरे हिसाब से A1 या A2 उसको नॉर्मल रहने के लिए, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ने जा रहा है तो टोटली इंग्लिश में, यूनिवर्सिटी के अंदर उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी वहाँ इतना इंटरनेशनल माहौल होता है. आयु तो मैं गया हूँ तो सारे बच्चे ज़्यादातर इंटरनेशनल ही हैं, तो सब इंग्लिश ही चलती है. लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं या किसी और, अब फर्ज करें बर्लिन में है, फिर बर्लिन में तो वैसे भी इंग्लिश चल जाती है. आउटसाइड भी मैं कहता हूँ कि बर्लिन में इंग्लिश चल जाती है. लेकिन जहाँ आप शहर चेंज करेंगे, अब आप छोटे शहर आ गए, फर्ज करें आप कोबर्ग आ गए, बोखम आ गए, और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो जहाँ पे आपको जर्मन चाहिए ही चाहिए होगी. यस 100%. इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद द लोकल्स, बाय द एंड ऑफ द डे आपने मूव आउट होना है, आपने लोगों के साथ कनेक्ट करना है. यूनिवर्सिटी में यू आर नॉट गोइंग टू स्टे फॉर द होल टाइम. सो फॉर दैट लैंग्वेज मैंडेटरी है वो आपको. एंड इवन पाकिस्तान में तो सिखा भी रहे हैं. देयर आर सो मैनी कंपनीज जो कि अब जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस यहाँ पे होती हैं. आई बिलीव आप भी जर्मन लैंग्वेज क्लासेस जो है यू डू हैव IGL में और मैं आपको बताऊँ कि 700 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो IGL में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं. मतलब कि बच्चे बहुत जर्मन पे फोकस कर रहे हैं और जर्मन पढ़ना चाहते हैं बच्चे. तो हम बिल्कुल ऑफर कर रहे हैं A1, A2, B1, B2. तो जो बच्चे जर्मन पढ़ना चाहेंगे वो ज़रूर राब्ता करेंगे. So that's a wonderful opportunity for the student who wants to learn the language before being in Germany. तो आई बिलीव ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए. अगर बच्चे को पहले थोड़ी सी आती है, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद ऑब्वियसली लोकल्स के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं, सो इट्स अ डिफरेंट फेज़ ऑफ लर्निंग. और यहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आई थिंक स्टूडेंट शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. अच्छा, अब लेट सपोज कि हमने बच्चे की एप्लीकेशन करी, उसका एडमिशन लेटर भी आ गया, उसका वीज़ा भी अप्रूव हो गया. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आगे जाके आयु किसी चीज़ में हेल्प करती है, जैसे कि भाई अकोमोडेशन हो गया, क्योंकि अकोमोडेशन का बहुत बड़ा मसला है. हमें पता है हम जर्मनी में रहें, अकोमोडेशन थोड़ा सा मुश्किल से मिलती है. मतलब कि आपको पहले से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करें या वहाँ जाएँ. तो बर्लिन में, क्योंकि ऑलरेडी बर्लिन के अंदर अकोमोडेशन थोड़ी सी टफ होती है, तो बच्चे को जाने के बाद जर्मनी वो पहुँच गया, तो अब आयु उसको कैसे स्टार्टिंग में हेल्प करेगी? डेफिनेटली अकोमोडेशन में वील हेल्प आउट द स्टूडेंट. हमारा स्टूडेंट सर्विस सेंटर है. स्टूडेंट को अगर अकोमोडेशन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है, सो दे कैन कनेक्ट विद देम, और वील डेफिनेटली हेल्प आउट द स्टूडेंट्स टू फाइंड बाय द नियर बाय अकोमोडेशंस. तो उसमें जितनी भी अकोमोडेशन बिल्डिंग के करीब होंगी, वील डेफिनेटली शेयर ऑल दीज थिंग्स विद द स्टूडेंट. तो इस तरह दे कैन मेक अ चॉइस, और जो भी उनको सूटेबल लगता होगा वो इसको कर लेंगे. अपार्ट फ्राम इट, विद इन द कैंपस हम जो है वो वी ऑर्गेनाइज द करियर फेयर्स, वीकली मंथली career talks होती हैं वहाँ पे, where we organize the multinational companies, and with that you can connect with the CEOs, and once you'll be done with your degree, so you can find a good job opportunity for yourself. So we do such activities for the students. चलिए, बहुत अच्छा लगा राबिया आपसे बात करके, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिली होगी, जो कि ऑलरेडी, क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि भाई यहाँ जाएँ, यहाँ नहीं जाएँ, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, जर्मनी जाएँ, UK जाएँ. तो काफ़ी स्टूडेंट्स को आपने हेल्प किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन करा और आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया हमें, और लाहौर से आप आई इतना दूर सिर्फ हमसे मिलने के लिए और ये पॉडकास्ट करने के लिए. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. Okay, thank you so much, Zan, for having me, and for everyone, if you want to be the part of IU vibrant community, you can connect with the IGL team, and looking forward to seeing you at IU. Thank you.